ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਹੁਣ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ 7999 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ 10,576 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ 915 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1540 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੀਡੀਅਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ 6019 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਸਮੌਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ 1065 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ FIR ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 624 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 596 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 482 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ FIR ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 79 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 56 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, STF SAS ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 53 FIR ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 582 FIR, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 512 FIR ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 355 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਉਹ 677 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 529 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। 147.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। 423 ਕਿਲੋ ਓਪੀਅਮ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। 255 ਕੁਇੰਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 25,548 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੌਪੀ ਹਸਕ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋ 46 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੁਲਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 51,39,882 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਰੱਗਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਟੈਬਲੇਟਸ, ਸਿਰਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। 1987 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਹੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ। POs ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ NDPS ਐਕਟ ਤੇ POs ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 683 ਜਿਹੜੇ ਨੇ PO ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ 10,576 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 15 ਕਿਲੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਵੇਨਾਈਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 8.4 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਅਬਸਕੌਂਡਿੰਗ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫਰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਵੇਨਾਈਲ ਫੜਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਸਮਗਲਿੰਗ ਆਫ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਮਕਰਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਆ BSF ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 25 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਬਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਟੈਰਰਿਸਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਬਲੀਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰੀਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੈਪਨਸ, 200 ਰਿਵਾਲਵਰ ਪਿਸਟਲਸ ਤੇ 24 ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। 140 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, 24 ਡਰੋਨ, 140 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 555 ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2 ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 510 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਪਨ ਤੇ 129 ਵਹੀਕਲਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ वो पंजाब पुलिस ने रिकवर किए हैं। ड्रग्स के खिलाफ पंजाब पुलिस ने पिछले 7 महीनों में जो ये हमने स्पेशल कैंपेन स्टार्ट की थी ऑनरेबल CM साहब की डायरेक्शंस पे, उस पर टोटल जो है
999 जो FIR रजिस्टर की है, जिसमें 10,576 जो है अक्यूज उनको अरेस्ट किया गया है। इनमें कमर्शियल क्वांटिटी के 915 केसेस हैं और 1540 केसेस जो हैं वो 1540 जो हैं बड़े स्मगलर्स इन कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस में अरेस्ट किए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो FIR रजिस्टर की गई है वो फिरोजपुर में 624 FIR, अमृतसर कमिश्नरेट में 596 FIR और पटियाला में 482 FIR रजिस्टर की गई है। कमर्शियल क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा FIR जो है 79 FIR पटियाला में रजिस्टर की गई हैं, 56 कमिश्नरेट लुधियाना में, 53 FIR जो है वो SCS नगर STF जो पुलिस स्टेशन है वहाँ रजिस्टर की गई है। इस समय के दौरान काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में जो रिकवरी हुई है ड्रग्स की, जिसमें हेरोइन की जो है वो 677 किलोग्राम्स की रिकवरी हुई है, जिसमें 529 kg जो है वो विद इन पंजाब रिकवरी की गई है और 147.3 kg जो है वो सी पोर्ट्स पे, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र सी पोर्ट्स पे रिकवरी की गई है। ओपीएम की 423 किलोग्राम्स की रिकवरी है, पॉपी हस्क की 255 क्विंटल की रिकवरी है। इसी तरह जो इंजेक्शंस टैबलेट्स जो हैं उसकी टोटल जो है 51,39,882 यूनिट्स जो हैं वो रिकवर किए गए इस समय के दौरान। ड्रग मनी बहुत हैवी जो ड्रग मनी रिकवर की है, जिसमें 10 करोड़ की ड्रग मनी की रिकवरी है। 1987 जो है व्हीकल्स जो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे वो कन्फिस्केट किए गए हैं और इस समय के दौरान स्पेशल कैंपेन जो चलाया गया था पीओज के खिलाफ भी, ड्रग्स के पीओज के खिलाफ, तो 683 जो पीओ हैं इस समय के दौरान अरेस्ट किए गए हैं। इसके अलावा कुछ बड़ी रिकवरीज पंजाब पुलिस ने की है, जिसमें 15 kg की एक रिकवरी है, जिसमें एक जुवेनाइल को अरेस्ट किया गया है। उसमें एक किंग पिन है जो रेशम सिंह है, अभी एक्यूज्ड जो है वो अब्सकॉन्डिंग है, उस पर काम चल रहा है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जुवेनाइल का जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें पहले भी कुछ फैमिली मेम्बर्स इस ड्रग्स के इलीगल स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसी तरह से इस समय के दौरान पंजाब पुलिस ने 25 जो है टेरर मॉड्यूल्स जो बस्ट किए हैं, जिसमें 160 टेररिस्ट ओब्लिक एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है। 30 सोफिस्टिकेटेड राइफल्स, 200 पिस्टल्स ओब्लिक रिवॉल्वर्स और 24 जो है ड्रोन्स विद इन कोऑर्डिनेशन विद BSF, 24 ड्रोन्स जो हैं कैप्चर किए गए हैं पंजाब पुलिस की तरफ से। गैंगस्टर्स के खिलाफ भी बहुत बड़ा एक्शन हुआ है इन दिनों में, जिसमें 140 जो हैं गैंगस्टर ओब्लिक क्रिमिनल मॉड्यूल्स बस्ट किए गए हैं और 555 जो हैं गैंगस्टर्स ओब्लिक क्रिमिनल्स उनको पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया है। 2 गैंगस्टर्स न्यूट्रलाइज हुए हैं जो एक बहुत ही सेंसेशनल केस में इन्वॉल्व थे और उनसे 510 टोटल जो गैंगस्टर इन दिनों में अरेस्ट किए गए, 510 वेपन्स और 129 जो व्हीकल्स हैं वो क्राइम में जो यूज़ हुए हैं वो कन्फिस्केट किए गए हैं। सो ये हमारा जो स्पेशल कैंपेन ड्रग्स के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ और टेररिस्ट के खिलाफ है वो लगातार पंजाब पुलिस का जारी है, जिसमें हमारे सारे जो स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं इस पे अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। ये ड्रग RDX की भी रिकवरी है कुछ? साल की हमारी 24 kg से ऊपर की रिकवरी है RDX की। सर एक सवाल इसको लेकर था, जैसे आपने कैंपेन तो चलाई है, हम इसकी जानकारी भी देते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, मतलब अभी कितनी इस पर रोकथाम हुई है जो नशा बिक रहा था? देखिए जो जैसे ना जो जब हम ऊपर से जब जैसे बड़े स्मगलर्स अब अरेस्ट हुए हैं, इसमें जो 1540 बड़े स्मगलर अरेस्ट हुए हैं, तो एक बैकबोन जो है वो ब्रेक होती है। ग्राउंड लेवल पे अभी फीडबैक जो कि हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं उसमें अब कुछ पंचायतें हमारी जैसे ग्राउंड लेवल पे हमने जो देखा है, कुछ पंचायत हैं जिन्होंने कुछ विलेजेस को ड्रग फ्री जो है डिक्लेयर किया है कुछ एरियाज में। तो कई कई तरह की जो है पंचायत लेवल पे भी चल रहा है हमारा, जैसे ये हमने एक जो कुछ एरियाज़ हैं जिसमें हॉट स्पॉट्स को ड्रग फ्री डिक्लेयर करवाया गया है। कुछ पॉकेट्स हैं, जैसे ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है 107 जो पंचायत हैं फिरोजपुर एरिया में, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है कि हम सोशली बॉयकॉट करेंगे ड्रग्स को। सो पब्लिक की तरफ से देखो इसमें 3 जो स्ट्रेटजी, एक तो इन्फोर्समेंट बेस्ड है, सेकंड है कि इसमें रिहेबिलिटेशन जो ऑलरेडी इसमें शमूलियत जिनकी हो चुकी है, तीसरा है डिमांड को जितना कम किया जाए। तो इन्फोर्समेंट में सबसे ज़्यादा जो है रोल वो पुलिस का है, जो रिहेबिलिटेशन है उसमें सारे डिपार्टमेंट्स का है और डिमांड पे भी सारे डिपार्टमेंट्स का है, लेकिन दोनों पे जो डिमांड और रिहेबिलिटेशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो पब्लिक की तरफ से चाहिए। तो अब जैसे जैसे पुलिस का प्रोएक्टिवनेस देख के जैसे पुलिस काम कर रही है, तो इस पर काफ़ी
जो NGOs सामने आ रही हैं, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स क्लब सामने आ रहे हैं, पंचायत आ रही हैं सामने, काफ़ी विलेजेस हैं, जैसे अभी मैंने बताया 107 विलेजेस हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम सोशल बॉयकॉट करेंगे। तो इस तरह की एक सोशल मूवमेंट जो है वो पूरे पंजाब में चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे ये एक्शन हमारा और जैसे बढ़ता रहेगा तो पब्लिक से भी उतनी ही हमें सपोर्ट मिलेगी। एक इसमें सर मैं खुद इसमें पंजाब के कुछ जिलों में विजिट किया हमने, हमारी टीम ने, तो वहाँ देखा कि इजीली अगर कोई पैसा लेकर नशा खरीदना चाहे तो आज भी उपलब्ध है सर। नहीं, उसमें ऐसा है कि इसमें कुछ एरियाज अभी होंगे, हो सकता है, पॉसिबल है, बट उस पर भी हमारा फोकस है। अभी हम, जैसे मैंने कहा कि हम लोग हर जगह पे, हर ज़िले में, हर कमिश्नरेट में हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो कई बार हॉटस्पॉट्स जो हैं, जैसे हमने शुरू में हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस हुई, तो कई बार वो चेंज हो जाते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये लगातार हमारी जो कैंपेन है वो लगातार जारी है इस केस में। कला और पटियाला, वहाँ पे कुछ इलाके जो हमें पता लगे वहाँ गए और हमने वहाँ पर शूट भी किया कि किस तरीके से लोग खुलेआम नशा बेच रहे हैं। ऐसे लोगों पे कैसे कार्रवाई होगी सर? डर नहीं नाम नहीं, की देखो, चीज़ नहीं है। जैसे जैसे मैंने कहा कि हमने जो जो हॉटस्पॉट्स, इसी बेसिस पे ही हम जो डेवलप करते हैं। हॉटस्पॉट्स का बेसिस होता है एक तो प्रेवलेंस क्या है, पब्लिक से क्या फीडबैक, और पब्लिक इंक्लूड्स एवरीवन, मीडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। सो उस फीडबैक पे ही हम हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं और उन एरियाज़ पे फिर स्पेशल फोकस किया जाता है। जैसे हमारी जो वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करते हैं, उससे पहले हम पूरा फीडबैक लेते हैं और उस वीक में क्या हुआ, किस तरह का एक्शन हुआ, और जो देखो, ये जो स्ट्रेटजी है ना, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, कि आपको जब कोई फीडबैक मिले तो आप उस पर फिर और ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जब जैसे कोई हमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है, चाहे वो मीडिया की तरफ से हो, चाहे हमें पब्लिक की तरफ से हो, तो उस पर और सख्ती होती है। तो यू विल सी कि जो एरियाज़ आप कह रहे हो, जहाँ पे आपने देखा है, तो आपको चेंज देखने को मिलेगी नेक्स्ट वीक में, 15 दिन में।